Hello, my dear students. Hope you all are well and safe at your home. I am here once again, Garima Sharma, in front of you, bringing the poem number 2, Fire and Ice, from your book First Flight of class 10th. I hope you will get the poem and the gist of the poem, the crux of the poem, with the help of these slides that I prepared for you. So let's start the poem. Poem number 2, Fire and Ice, presented by Garima Sharma, that's me. And the poet of the poem is Robert Frost. Okay. Next, at very first we will study about the objectives. As I told you, objective means उद्देश्य, जो हमारे उद्देश्य यानी किन उद्देश्यों के लिए हमने पोएम को हम आपको ये पोएम पढ़ा रहे हैं. So at very first we will study about the poet, यानी poet के बारे में बताना ज़रूरी है. Then poem and its introduction, वो भी हम आपको बताएंगे. Next we will tell you about the summary of the poem, and then central idea, you can say theme or you can say message of the poem. Then poetic device and vocabulary, and in the last I prepared assignment for you, my dear students. So let's start at very first about the poet. As I already told you about Robert Lee Frost, because we have already studied about his one of the very famous poems, that is Dust of Snow. From this poem, the previous poem was the Dust of Snow, that we already discussed, and now we are going to discuss the poem Fire and Ice. So once again I am going to tell you the biodata, you can say biography of Mr. Frost. Date of birth 26th March 1874 in San Francisco. Date of death 29 January 1963 in Boston, Massachusetts. He was an American poet who was much admired for his depiction of the rural life. Depiction means declination or you can say devotion, जो इनका एक रुझान था rural life की तरफ of New England, उसके लिए ये famous है. At next, introduction about the poem. Now we will study about the introduction of the poem. These are the linings of the poem. This poem is a little poem just like the Dust of Snow. The Dust of Snow contains only 8 lines and it contains 9. One extra line here. We will study it soon, very soon. And next, read. It is at the right side. There is an introduction of the poem. So let's start with the poem, and after that we will study the introduction. Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का जो अंत होगा वो फायर यानी आग से होगा. यहाँ पे जो फायर बताया है वो आपके डिज़ायर को बताया गया है. ये भी यहाँ पे क्लियर होगा कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे डिज़ायर के लिए फायर स्टैंड कर रहा है. और सम कहते हैं, सम यानी कि सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि आइस से होगा. अभी फायर और आइस जो हैं ये क्या हैं, तो मैंने तो बोल दिया ये डिज़ायर है, लेकिन अब मुझे कहाँ से पता चला. लेट्स सी. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. फ्रॉम व्हाट, जो मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग जो फायर है वो डिज़ायर. अब यहाँ पे जो आई है, आई हैव किसके लिए है, आई यानी पॉइंट के लिए. वो बताते हैं कि जो फायर का कंपैरिजन उन्होंने डिज़ायर से किया है, तो मुझे भी यहीं से पता चला है. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. मैं आई होल्ड उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि दुनिया का जो अंत है वो आग से होगा. आग का यहाँ पे मतलब डिज़ायर. लोगों की जो इच्छाएं हैं वो कभी मरती नहीं है, और अगर हम अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमारे अंत को भी कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं रोक सकता. ठीक है. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया का अंत 2 बार होना हो, पेरिश मीन्स टू डाई, खत्म होना हो, अंत होना, ट्वाइस 2 बार, आई थिंक तो मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ इट, तो नफरत भी काफ़ी होगी. कि पहली बार तो पोइट ने बोला है कि दुनिया का अंत फायर यानी कि डिज़ायर से होगा, जो लोगों की इच्छाएं हैं उनके अंदर भरी हुई हैं, जो ख़त्म नहीं होती हैं उससे. और सेकेंड टाइम अगर ऐसा हो कि दोबारा अंत हो दुनिया का, तो वो हेट यानी कि नफरत से होगा. टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, की जो दुनिया के पतन का कारण है वो आइस. और ये आइस का यहाँ पे कंपैरिजन दिस इज मेंशन हियर, दिस इज हेट, कि यहाँ पे आइस को हेट से और फायर को डिज़ायर से कंपेयर किया गया है. इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, और ये भी सफाइस में सफिशियंट होगा. तो यहाँ पे 2 न्यू वर्ड मिले हैं आपको. कौन कौन से वर्ड्स हैं, एक पेरिश है, एक सफाइस. ठीक है. आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ द पोएम. नेक्स्ट,
The introduction. Fire and Ice is one of Robert Frost's most popular poem, just like Dust of Snow. तो जैसे Dust of Snow इनकी एक famous poem है, ऐसे ही Fire and Ice भी है. It was published in December 1920 in Harper's Magazine. वहाँ पे एक मैगजीन पब्लिश हुआ करती थी जिसमें कि इनकी पोएम भी पब्लिश हुई. इट डिस्कसेस, ये डिस्कस करती है द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इस पोएम में क्या बताया गया है, एज आई एक्सप्लेन यू ऑलरेडी, कि दुनिया का अंत कैसे होगा. ये एक इमेजिनेशन बताई है. ये तो देखो कोई नहीं जानता दुनिया का अंत कैसे होगा, लेकिन जो फीलिंग और जो भावनाएं लोग अपने अंदर अब पाले हुए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए पॉइंट ने बोला है कि दुनिया का अंत इन्हीं दो भावनाओं से हो सकता है. डिज़ायर से, अपनी इच्छाओं से, जो कि कंट्रोल नहीं कर रहे हैं लोग आजकल, और किसी से हेट्रेड, एक दूसरे के लिए नफरत इतनी पैदा कर चुके हैं कि ऐसा लगता है कि दुनिया का अंत इन्हीं दो से हो जाएगा और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी. देन लाइकिंग द एलिमेंटल फोर्स. एलिमेंटल फोर्स वो फोर्स जो हमारे अंदर विद्यमान है. कौन सा फोर्स? जिसको फायर बोला गया है. विद द इमोशंस ऑफ डिज़ायर एंड आइस विद हेट. आइस को हेट और फायर को डिज़ायर यहाँ पे बोला गया है. नेक्स्ट, now I'm just going to tell you the summary of the poem, as I already explained the poem, so it will not take so much time. In this short poem Fire and Ice, the poet Robert Frost expresses the ideas what people say. यानी कि इस छोटी सी पोएम में रॉबर्ट फ्रोस्ट ने बताया है उन लोगों के आइडियाज़ को जो बताते हैं से अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के अंत होने के बारे में बताते हैं कि कैसे हो सकता है, जबकि इनडायरेक्टली यहाँ पे पोइट की खुद की ये सोच है, यानी कि खुद वो बता रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं, जबकि यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं. अकॉर्डिंग टू हिम सम पीपल से दैट दिस वर्ल्ड में एंड बाय टू थिंग्स. उनके अकॉर्डिंग कि लोग कहते हैं कि दुनिया का जो अंत है दो चीज़ों से हो सकता है, आइदर या तो बाय फायर, आग से, और बाय आइस, या फिर आइस से. हियर द पोइट कंपेयर्स फायर एज डिज़ायर. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे पॉइंट ने फायर का जो कंपेयर है हमारे मन की इच्छाओं से, डिज़ायर से किया है, ऑफ पर्सन, एंड आइस एज हेट्रेड, और आइस का जो कंपैरिजन किया है वो हमारी नफरत जो हम पाले हुए हैं अपने दिल में एक दूसरे के लिए, विद ईच अदर. ठीक है. दिस में द कॉज ऑफ देयर एंड, और यही उनके पतन का कारण हो सकता है. इट विल एंड बाय फायर एंड इट देयर इफ देयर विल बी द सेकेंड चांस. यानी पहले तो उसने प्रायोरिटी दी है वो फायर यानी कि डिज़ायर्स, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी इच्छाओं को दी हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते. 1% को पॉइंट कह रहा है कि हम नफरत को ख़त्म कर सकते हैं अगर हम चाहें, लेकिन डिज़ायर जो है वो बढ़ती रहती हैं क्योंकि हम उसको गलत नहीं मानते हैं. लेकिन जब तक हमें नहीं पता होगा कि ये चीज़ें गलत हैं तो हम उन पर कंट्रोल कैसे करेंगे. ठीक है. तो फॉर एंडिंग दिस वर्ल्ड, कि अगर दुनिया का अंत 2 बार होगा सो इट विल बी हेटेड. तो सेकेंड टाइम उसने कहा है कि पहली बार तो डिज़ायर से और दूसरी बार अगर पॉसिबल हुआ तो वो नफरत से हो जाएगा. द पोएट हैज़ यूज मेटाफर हेयर टू कंपेयर डिज़ायर इन द फॉर्म ऑफ फायर. यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया है. कौन सा? यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है डिज़ायर को किस फॉर्म में, यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं उनको बताया है फायर की फॉर्म में, और जो हेट्रेड है इन द फॉर्म ऑफ आइस. नेक्स्ट, सेंट्रल आइडिया, यू कैन से थीम और यू कैन से मैसेज, जेस्ट, क्रक्स, base of this poem. The central idea of this poem Fire and Ice is given by the famous American poet Robert Frost, as we already discussed here. He says that the feeling of hatred and their desires in their mind, this is misprint here, their mind, and यानी कि जो हमारे दिमाग में डिज़ायर है, हमारे मन में इच्छाएं भरी हुई हैं, ठीक है, और जो नफरत भरी हुई है उनसे दुनिया का अंत बताया गया है. एंड इन हार्ट इन द ओ इज द ओनली रीजन ऑफ देयर कैटास्ट्रॉफिक एंडिंग. कैटास्ट्रॉफिक होता है दुखद अंत, एक होता है जैसे हैप्पी एंडिंग, तो ये उसका अपोजिट है कैटास्ट्रॉफिक एंडिंग. वी शुड लीव, तो यहाँ पे मैसेज है वी शुड लीव. तो हमें क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है? वी शुड लीव द फीलिंग ऑफ हेट्रेड, हमें नफरत की भावना को छोड़ देना चाहिए. एंड कंट्रोल आवर डिजायर्स, और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेना चाहिए. इफ़ वी डोंट is there is a comma, so we will take a little pause. If we don't, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, these negative things will end our body. ये दोनों नेगेटिव चीज़ें, कौन? डिज़ायर्स और जो आपकी हेट्रेड, नफरत है, वो हमारी बॉडी को खा जाएंगी, एज वेल एज आवर माइंड, हमारे दिमाग को खा जाएंगे. लाइक टर्माइट, जैसे दीमक होती है ना, दीमक होता है टर्माइट मीन्स, जैसे स्लोली धीरे धीरे वो लकड़ी को खाती रहती है, खोखला कर देती है. इसी तरह से दोनों इच्छाएं हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को ख़त्म कर देंगे और इसी से हमारा भी पतन हो जाएगा. दैट विल बी द रीज़न ऑफ एंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, और यही दुनिया के अंत का कारण हो सकता है. नाउ द पोएटिक डिवाइसेस, एज आई टोल्ड यू देयर आर मैनी पोएटिक डिवाइसेस. फर्स्ट मेटाफर, डिज़ायर को हमने फायर की तरह यूज़ किया है, और हेट्रेड
यू कैन से फायर को हमने डिजायर की तरह बताया है और आइस को हेट्रेट की तरह, यानी कि कंपेयर हो रहा है यहाँ पे। एसोनेंस होता है रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड इन द सेम लाइन, एक ही लाइन में जब वोवेल साउंड रिपीट होता है, जस्ट लाइक सम से द वर्ड, सम वर्ड यू कैन see here. Second example I gave you here, I hold with those, okay. Next poetic device here is alliteration. You know very well, this is the repetition of the consonant sound in the same line, just like for example favor, fire, okay. Next symbolism, यानी दो सिंबल, जस्ट लाइक यू कैन से कि दो चीज़ें, दो वर्ड हमने यूज़ किए जो सिंबल हैं। फायर किसका सिंबल दे रहा है यहाँ पे, डिज़ायर का, और आइस दे रहा है हेट्रेड का, ठीक है। मेटाफर में यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है देखिए, लेकिन दोनों मिलते जुलते हैं। देन एनाफोरा होता है रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन, किसी वर्ड का रिपीट होना दो लाइन्स में कंटिन्यू, जैसे सम से द वर्ड, और सम फिर से आ रहा है यहाँ पे, सम से इन आइज, ओके। नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन किसको बोलते हैं, जब हम नॉन लिविंग को लिविंग मान के बात करते हैं उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन क्या है, यहाँ पे फायर और आइस को एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट जो हमारे अंदर जिंदा हैं उसको पर्सोनिफिकेशन माना है। आप इसको समझिए पॉइंट को, और वो दोनों वर्किंग फॉर्म में हमारे अंदर हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। इन द लास्ट आई प्रिपेयर्ड एन असाइनमेंट फॉर माय डियर स्टूडेंट्स. I hope you got the poem sense, the meaning, the you can say gist and the crux of the poem, यानी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप इसके एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पे, और इसके मीनिंग को, यानी कि इसके क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने प्रिपेयर किए हैं। यू कैन इजीली गिव द आंसर्स, आप आसानी से इनके आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोइट्स ओपिनियन अबाउट द वर्ल्ड. You can read both the question properly. There is a little bit difference. What do people say about the world? यहाँ पे लोग क्या कहते हैं वर्ल्ड के बारे में, यहाँ पे पोइट की क्या ओपिनियन है वर्ल्ड के बारे में. I hope you got. Then third question, what is the meaning of perish and suffice? As I told you already, I explained during the explanation of the poem. And the last question is what is the message of the poet? What is the message the poet wants to give via this poem? इस poem के माध्यम से poet आपको क्या मैसेज देना चाहता है. So these all were the slides that I prepared for you, my dear students. I hope you got the sense, the explanation, the summary, the interpretation of the poem properly. Read this poem once again, and if you have any query you can ask me. We will meet you soon. Till that time, goodbye and take care. We will meet soon. Bye.